I just came for a few, I mean, just to listen to you. I have no role in this session except being the patron of this conference. And I think the session chair is our colleague, Dr. Ashish Joshi. So I'm sure he has also joined. So it's always a pleasure listening to Pawan Guruji. And warm welcome to our university, although it is online. We look forward to your personal, offline visit also in the coming days. Thank you so much for sparing your valuable time. I just came to listen to you. That's it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I would like to share that this particular FDP has gone gold with diamonds only and only because of Professor KG Suresh. He has added these very valuable gems. And I would like to say, Dr. Sinha Sahab, that most of us are fans of your all sharings done so far. And your entire bouquet of your activities is really, really amazing. You are having so many activities through your ashram that it's really very difficult to find out what is it that is more important, starting from Ayurveda, Samaj Seva, Dhyan Baitak, Swaraj Sabha, then you are having Gyanotsav, Bharat Utsav, and numerous activities. And I have seen there are so many organizations, NGOs who are working, but the gist is missing, the root is missing. Your Pavana Chintan Dhara ashram is doing miracles. I would like to share with the audience to go to his website, which is so dynamically indicating the seva, and the website is quite simple, pavansinhaguruji.com. It's having contribution from all dignitaries, including the Honorable President, the Prime Minister, Rajnath Singh ji, then Yogi ji, and so many illuminated souls who are blessing, who are praying for the wonderful contribution that Guruji has been doing. I would definitely feel very honored to listen to you like so many others who are present here. Over to you, Sinha Sahab. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you very much. And it was a great pleasure to share a stage with Professor KG Sureshji, a well-known intellectual who has given a new dimension to journalism in India. And I'm really very much elated, Professor Suresh, Honorable Vice Chancellor Sahab, to be with you. I'm really elated. बहुत आह्लादित हूँ कि आज आपका सानिध्य मिल रहा है. We happen to be in some discussions on television, but you don't know that I have been following you, and I have also read you vividly. And the contribution that you have made in journalism, and above all, whatever you have earned through your experiences, you are imparting to your students. So I have a lot of respect for you. Thank you so much. Thank you so much for speaking good words for me. Professor Chaitanya Sahab, thank you so much that you spoke about ashram, which is a collective unit, and my so many ashram parivar mates and my so many children have, they collectively have developed. Sir, we are so excited that we would definitely like to come in group and work and seva in the ashram. Madam, it will be a great pleasure for all of us to welcome you. Please, sir, please visit. And recently, I have also seen my younger brother, Dr. Ashish Joshi ji, whom I really love and respect a lot. We are together from 2006, and we have, me and my children, they have learned a lot from Ashish ji's personality when he was here in CEO of Lok Sabha Television. Many of my
ashram persons met him. He's a wonderful younger brother. Everybody would like to have a younger brother like Ashish ji, very great intellectual and committed work. So I again send my pranam to Professor KG ji, Professor Chaitanya ji, and my younger brother Ashish ji, and all those who are present on this virtual forum for discussing what is creativity and what is the relation of creativity with peace of mind. Before I start, let me make some things very clear. Spirituality has nothing to do with imagination. Spirituality is not imagination. कोई भी दुनिया में अगर विज्ञान है, वह कल्पना आधारित नहीं हो सकता. कोई चीज अगर होती है तो होती है तो वो महसूस होती है, वो दिखे भले ही ना, पाल्पेबिलिटी फैक्टर में भी दे, लेकिन अगर कोई चीज होती है तो होती है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो सांस हो, चाहे वो मोटिवेशन हो. मैं कल्पना करूं कि मैं बहुत महान इंसान हो गया हूं और क्रिया ना करूं तो मैं महान इंसान नहीं हो सकता. आजकल एक प्रैक्टिस बहुत शुरू हो गई है, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन यू आर दिस. ये कभी होता नहीं है. तो मैं जो भी आपसे आज बात करूंगा वो मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं फ्रॉम मेरी स्पिरिचुअल एज इज अराउंड 36 years, and I would like to deliver my point of views basic upon what I have earned in my experience, not what I have earned through books only. मैं बहुत क्लियरली आप सब लोगों को ये बताना इसलिए भी चाहता हूँ क्योंकि जहाँ भी एक स्पिरिचुअल पर्सन की या स्पिरिचुअल मास्टर की बात आनी शुरू होती है, हम तुरंत एक चीज इमेजिन कर लेते हैं कि वो बहुत सॉफ्टली अपनी बात को कहेंगे. He'll continuously, regularly mention about imagination. He would focus on some yogic kriyaएं, etc. लेकिन मैं बहुत जंगल घूमा हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों के साथ रहा हूँ. मुझे ऐसा सौभाग्य मेरे गुरु महाराज की कृपा से मिला है, मेरे गुरुदेव की कृपा से मिला है. वहां से जो मैंने सीखा है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा. वहां जो मैंने समझा है वो शेयर करूंगा, और मैंने जो कुछ समझाया गया मुझको, वो जब तक मैंने उसको प्रैक्टिकली नहीं देखा तब तक मैंने उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया. तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मेरी बात आपको लगेगी, मैं कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ बात करूंगा. दूसरी एक बात मैं कह दूं कि मैं वेदांत का विद्यार्थी हूं और समाज के साथ मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूं जब मैं 3.25 वर्ष का था. तो मैंने समाज से बहुत कुछ सीखा है, और वेदांत प्रैक्टिस बेस्ड है. जो है सो है, जो नहीं है मेरे इमेजिनेशन से वह क्रिएट नहीं हो सकता. मैं ये मानता हूं, और इसीलिए मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं. इसीलिए अगर कुछ चीज क्रिएट नहीं होती है और आप उसे इमेजिन करते हैं, वो यूजलेस हो जाती है. प्लीज टेक माय वर्ड्स और इसे प्रैक्टिस कीजिए. अगर मैं ये इमेजिन करूं कि मेरी आवाज श्री अमिताभ बच्चन जी जैसी हो जाए, मैं इसे इमेजिन करने लगूं, आंख बंद करके करूं, चाहे आंख खोल के करूं, चाहे नाभि क्रियाएं करके करूं, श्वास प्रश्वास करके करूं, वो नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी. क्योंकि यदि ऐसा होता
तो लोग सीखने की बजाय, क्रिया करने की बजाय, कर्म करने की बजाय सिर्फ ध्यान करते, घर में बैठ के। बाहर कर्फ्यू लगा रहता, धारा 144 लगी रहती, डिजास्टर मैनेजमेंट चलता रहता, जैसे कोरोना काल में। ये जरूर है कि आपका अगर डीप इमेजिनेशन है तो आप मुंह में संतरे का रस महसूस तो कर सकते हैं, पेट नहीं भर सकते। पेट संतरा खाने से ही भरा जाएगा। मैं ये बड़ी भूमिका बांध रहा हूं क्योंकि सबसे पहले हमको जो करना चाहिए, जो मेरी पेडागॉजी भी है, और वो ये है कि हमको सबसे पहले अपने आप को क्लियर स्लेट की तरह से लाना चाहिए, अनलर्न करना चाहिए, तब हम न्यू लर्निंग कर सकते हैं। मेरी बात ठीक ना लगे तो आगे आप जो अर्थी आप जानते हैं उसी को परसू कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी डेमोक्रेसी सिखाती है और एक स्पिरिचुअल पर्सन के बिहेवियर में कोर वैल्यूज में एक डेमोक्रेटिक वैल्यू भी होती है। इसलिए मैं बहुत कुछ सीख के ही जाऊंगा आपसे। तो अभी तक जो मैंने बात की वो ये है कि जो है सो है, जो नहीं है वो केवल इमेजिन करने से नहीं आएगा, वो क्रिया करने से आएगा, वो तप करने से आएगा। अगर एक जर्नलिज्म का एक नोवियस स्टूडेंट अभी आके बैठे एंड ही वुड आस्क मी हाउ टू बी लाइक प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, प्रोफेसर चैतन्य जी और आशीष जी, तो आई वुड डेफिनेटली से that concentrate yourself on yourself, concentrate on some virtues, some weaknesses, and do maximum kriya. Go through the way they adopted, or even you can choose or make your own way, but do kriya. कैसी क्रिया? कर्मसु कौशलम, जो श्री कृष्ण कहते हैं वो क्रिया, तब आप उनकी तरह शायद बन पाएंगे। और आप बहुत अनुभव के साथ चले तो हो सकता है आप बहुत बेहतर बन जाए। लेकिन केवल आप इमेजिन करें कि मैं उन जैसा बन गया हूं, नहीं बन सकते। हमारे ब्रेन में कोई ऐसी चीज नहीं है। जब आप योगी हो जाते हैं तो आप शरीर से प्राण एक निश्चित समय के लिए निकाल सकते हैं। आपकी चेतना शक्ति जब तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जब आप डेल्टा वेव्स के साथ या अल्फा वेव्स के साथ जीने लगते हैं, उस वक्त में ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप शरीर एक जगह है, आपका विचरण दूसरी जगह हो सकता है। इसे बहुत सारे लोग कॉस्मिक फ्लाइट कहते हैं, बट दिस इज इनसाइड जर्नी। दिस इज पॉसिबल। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग दिस। दिस इज पॉसिबल। लोग दूसरे के स्वप्न में भी इंटरफियर कर सकते हैं, बट थाउजेंड्स of people work on this path and hardly one or two get the success. But this is possible, howsoever difficult it is, but it is possible. दूसरी बात, स्पिरिचुअलिटी में दो स्कूल्स हैं। एक स्कूल है जो संन्यास आश्रम की तरफ लेके जाता है, जिसका वर्णन गीता में भी है, 5वां अध्याय। और दूसरा जो स्कूल है वो कर्मयोग की तरफ लेके जाता है, जिसका वर्णन भी श्री कृष्ण ने किया है और बहुत वृहद रूप से किया है। अध्याय 3। कर्म से उत्पन्न संन्यास जो होता है, जो अध्याय 5 में गीता में उल्लेखित है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सीधा संन्यास बिना कर्म किए यदि कोई संन्यास लेता है तो वह अश्रेष्ठता को प्राप्त करता है और
बहुत कंफ्यूजन उसको होता है। बहुत सारे बच्चों से मैं एक बात पूछता हूं, आप मोटिवेशन का लेक्चर लेकर आए, आर यू मोटिवेटेड? Many say yes, we are. फिर मैं उनसे 3 महीने बाद पूछता हूं, are you still motivated? And you won't believe most of them say, no, we are not. They have forgotten that. Because it did not travel from words to heart. Why it did not travel? Because we did not teach how to execute the words. We taught them how to muse over the words. Imagination. We are teaching them imagination. Imagination of what which is not there. तो ये दोनों चीजें मेरी फिलॉसफी में है कि इमेजिनेशन फ्यूटाइल नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रेगमेटिक होनी चाहिए। अब इमेजिनेशन में यहां एक प्रश्न उठता है, इफ आई एम राइटिंग अ स्टोरी, प्योर स्टोरी, एक फिक्शनल स्टोरी, तो वो भी तो फिर फ्यूटाइल इमेजिनेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें एक हिंज है, उसमें एक धरातल है, उसकी एक फाउंडेशन है। कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट, their stories may be different, they may be topsy-turvy ways that you have imagined, but base is not missing. Base is there, and that is why if you are writing the story, you have a base of the society, you have base of your friends, you have some inspiration within you. Obviously, there is a difference between motivation and inspiration. From words, if words travel to execution, that is inspiration. If words travel to emotions, that is motivation. And emotions are like bubbles. Today they are very big, next second they blast. तो जब शब्द भावनाओं को छूते हैं तो मोटिवेशन हो जाता है, और जब शब्द एग्जीक्यूट करा लेते हैं, किसी क्रिया को करा लेते हैं, इंस्पिरेशन बन जाता है। इसलिए जो लोग इंस्पायर्ड होते हैं वो सीख कर उसको जिंदगी में उतार लेते हैं। जो केवल मोटिवेट होते हैं, दे नीड अनदर मोटिवेटिंग सेशन फ्यू डेज आफ्टर। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, सृजनात्मकता से पीस ऑफ माइंड आता है। पीस ऑफ माइंड को भी मैं अपने तरीके से डिफाइन करूंगा, बट इफ योर इमेजिनेशन क्रिएट समथिंग, बेसिक वही इमेजिनेशन है। इफ इट इज नॉट pragmatic, it will go futile. If it is pragmatic, we'll get the God. और गॉड क्या है? क्रिएटिविटी। साहित्यकारों का या कलाकारों का भारत में इतना सम्मान क्यों रहा? साइंटिस्ट का भारत में इतना सम्मान क्यों रहा? इन्वेंटर्स का भारत में इतना सम्मान क्यों रहा? इन्वेंटर्स को भी ऋषि कहा गया, वामदेवाचार्य को भी ऋषि कहा गया। केवल कुछ श्लोक रचने वाले ही स्पिरिचुअल ऋषिज नहीं है। साइंटिफिक ऋषि भारद्वाज ने मशीन्स को इन्वेंट किया है और वो भी ऋषि। म्यूजिक को इन्वेंट किया, वो भी ऋषि। स्वर अंदर हैं, बट यू डिस्कवर द नोट्स, वो भी ऋषि हैं। सृजनात्मकता से स्वयं शांति आती है।
जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूनेस, विच हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड अ बिट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी. Newness or creativity, that itself is peace. When we are sitting alone and when we are imagining something, and when what we are imagining is converting that to creation, oh, what kind of peace of mind at that time we have. Even the diseased person, even the person with so many diseases gets tranquility. It is not just peace that we attain from creativity. It is tranquility, which yoga talks about. Tranquility, shanti, param shanti, paramanand. जो पंचकोश का सिद्धांत है, पंचकोश का जो आनंद है, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं. एक क्षण खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, एक क्षण आनंद की बात नहीं कर रहा हूं. मैं उसकी बात कर रहा हूं जो भीतर से फूट के आ रही है, वो खुशी. एक व्यक्ति, चाहे उसे गाना नहीं आता, लेकिन जब वो डूब कर गाना शुरू करता है, और जब उसका प्रोड्यूसर या मेरे जैसा कोई व्यक्ति उससे कहता है, अरे सीन में उतर जाओ, और वो सीन में उतर के अपने आप को इमेजिन करने लगता है, और तब वो गाना गा रहा है, तब वो क्रिया कर रहा है, उस वक्त वो जो महसूस करता है, वो दैट इज अटर ट्रैंक्विलिटी, आनंद, परम शांति. हम आजकल परम शांति को मुर्दों के साथ जोड़ देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. मनुष्य को भी परम शांति प्राप्त होती. परम शांति, one step ahead of peace. वो है. टीचर्स को ये खूब मिलती है, स्पिरिचुअल पर्सन्स को ये खूब मिलती है. क्लास में चाहे कितना भी तनाव हो, हम जब समाज में काम करते हैं, जब देश के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव आता है, और कभी कभी ये तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है. और जैसे जैसे आपका कद और पद बढ़ता है, तो आपके पास हमेशा हर क्षण दो राहें होते हैं, टू वेज, आइदर दिस और दैट. बहुत प्रेशर्स होते हैं लोगों के, समाज के, बॉसेस के. लेकिन जब एक टीचर उन सब से गुजरता हुआ, उन सबको अपने सिर पर लादे हुए अपनी क्लास में जाता है, और जब वो देखता है स्टूडेंट्स के चेहरे, और जब स्टूडेंट्स की जिज्ञासा को वो शांत करने लगता है, तो उसके मन में सारा तनाव खत्म हो जाता है. वो धीरे धीरे जो प्रस्फुटन होता है खुशी का, गुदगुदी का, वो रिलेशन होता है सृजनात्मकता का और मानसिक शांति का, क्रिएटिविटी एंड पीस ऑफ माइंड. इसीलिए मैं कभी कभी, चूंकि आश्रम शिक्षा पे बहुत काम कर रहा है, शिक्षा से संबंधित बहुत रिसर्चेस भी चल रही हैं, खासतौर से पेडागोजी पे, खूब टीचर से मिलना होता है. बहुत सारे टीचर्स को लगभग हर महीने एड्रेस करना होता है, उनकी गैदरिंग्स में जाना रहता है. मैं हमेशा उनसे एक चीज कहता हूं, क्लास का जो दरवाजा है, ये वो चौखट है जिसके अंदर क्रिएटिविटी की दुनिया है और बाहर तनाव की दुनिया है. बाहर की दुनिया को अंदर लेके मत जाओ, उसे वहीं छोड़ दो थोड़ी देर. अगर बाहर की दुनिया को अंदर ले गए तो आप बच्चों के साथ अन्याय करें. कभी कभी एक अलग बात है, कुछ अजीब से विप्लव आ जाते हैं जीवन में, कभी कभार तो एक अलग बात है, मन नहीं लगता, किसी भी चीज में मन नहीं लगता. लेकिन ज्यादातर समय उस चौखट पर अपना तनाव छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, तीखा बोलना छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब उसी चौखट पे छोड़ दो, क्योंकि उस चौखट के परे एक मंदिर है जहां पर अब कुछ सृजन होगा. पूरी धरती भी एक मंदिर है. ब्रह्मा जी ने वहां सृजन किया, मनुष्य की उत्पत्ति हुई. वो ईश्वर,
वो मनुष्य की उत्पत्ति भी करता है, वृक्ष की उत्पत्ति भी करता है, लेकिन मनुष्य भी अपने आप में एक ब्रह्मा को समेटे हुए है, क्योंकि वह भी उत्पत्ति करता है। इसीलिए जब वो उत्पत्ति करता है तो ये विकार नहीं बनता, ये चातुष्ट बनता है। का किसका? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। उस काम से उत्पत्ति होती है। वो अधोगति की तरफ नहीं लेकर जाता, उधर्वगति की तरफ लेकर जाता है। कक्षा के अंदर एक ऐसा ही मंदिर है। दैट्स अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। And that is why I always request my teachers, when you cross that particular line which divides outer world and the classroom, you leave all the things, even your mobile also, behind. Switch off your mobile. Do not interact with outer world. Unless it is an emergency, do not interact with outer world. Go in the class and interact with your students. You will feel what I am saying. May not be new questions, may not be even questions. जरूरी नहीं है हर सभा प्रश्न ही पूछे। बड़े बड़े विद्वजनों की सभा में भी प्रश्न नहीं आते हैं। कोई हो सकता है प्रश्न ना हो, लेकिन आपने जितना बोला, आपने जितनी बात कही, आपने अपना 100% दिया, उस कर्म का, उस क्रिया का, उस सृजनात्मकता का मेल जो है, वह आपको पीस ऑफ माइंड देगा, आपकी चेतना शक्ति को बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए वो सभी लोग जो कर्म से बनते हैं वह टिकते हैं, और वह सभी लोग जो कर्म से नहीं बनते हैं वह नहीं टिकते। तो सृजनात्मकता ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सृजनात्मकता से हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सृजनात्मकता से हम उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति जो है वो स्वयं सृजन है। हम एक कविता की उत्पत्ति करते हैं, हम एक शेर की उत्पत्ति करते हैं, हम शायरी की उत्पत्ति करते हैं, हम पढ़ाने की मेथोडोलॉजीज की उत्पत्ति करते हैं, हम दो पेड़ को मिलाकर एक तीसरा पेड़ बना देते हैं, हम उसकी उत्पत्ति करते हैं, हम नए नए रास्ते खोजते हैं, किसी भी चीज से मुताल्लिक वो हो, और उस उत्पत्ति को ही सृजनात्मकता कहते हैं, और उसमें परम शांति। एक उदाहरण दे रहा हूं, may look weird to some. I'm talking about an honorable lady who is pregnant and about to deliver. Labor pain starts, creativity starts. I'm comparing the both situations. Creativity starts. Labor pain increases. Restlessness in creativity increases. This, no, not this. This, you are tearing off the papers. No, I need to write something better. Pregnancy, labor pain increases more. She even may shout after that, or shout because of that pain. And here, the person who's creating something, he's doing the same thing. He may shout, "Aata kyun nahi dimag mein? Aata kyun nahi dimag mein?" And at that time, somebody intrudes in his room. He shouts, "Why have you entered my room?" Same situations. And when the pain is extreme, and there the person who is creating something, when he is on the peak, both are now fighting to deliver something. And when it is delivered, very peace, utter tranquility, feeling of pride, feeling of love,
आनंद, दोनों ही लोग उस समय सारी प्रसव पीड़ा भूल जाते हैं, खुशियां फैल जाती है। जिसने क्रिएट किया है और लोग भले उसकी खुशी में शामिल ना हो, लेकिन वो नाचने लगता है, वो उम्र के बंधनों को स्वतः तोड़ देता है, वो अपना पद कद भूल जाता है, एंड ही इज इलेटेड, वेरी हैप्पी, यस आई हैव मेड इट। ये है क्रिएटिविटी। और when a person makes it a feel of tranquility, इसलिए मैं सारे लोगों से कहता हूं, अक्सर कहता हूं, सोच और क्रिया में उतार लो। अगर तुम सोचोगे और क्रिया में नहीं उतारोगे तो झूठ बोल रहे हो भगवान से, झूठ बोल रहे हो खुद से, तुम्हें कभी पीस ऑफ माइंड नहीं आएगी। और जिस व्यक्ति में पीस ऑफ माइंड नहीं आती है, वो दूसरों को भी विद पीस ऑफ माइंड नहीं रहने देता। लेकिन खैर, समाज को तो हम नहीं सुधार सकते, हम तो खुद को ही सुधार सकते हैं। समाज को सुधारने का कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता भी ज्यादा नहीं, थोड़ी तो है। हमें अपना इंसाइट तो समाज को देना ही चाहिए, लेकिन समाज सुधरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं खुद को सुधारना चाहूंगा तो सुधर जाऊंगा, इसकी गारंटी है। हमारे आश्रम का एक नारा है, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। Until I am changed, I cannot change anybody, let alone the society. समाज में ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है आज। जो लोग खुद परिवर्तित नहीं हुए, वो समाज को परिवर्तित करने चल देते हैं, और इसकी वजह से अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सब सारे आचार फैल जाते हैं। टीचर एक सेंट है, एक ऐसा सेंट है जो फ्रॉम विदिन सृजन करता है। सृजन विदिन ही हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता। वो रोज सृजन करता है। आज ये पढ़ाएंगे तो इस तरीके से पढ़ाएंगे, अगर वो टीचर है तो। अगर वो केवल एक प्रोफेशनल है तो अलग बात है। तो अगर वो कोशिश करता है, हिम्मत मेहनत करता है, तो वो रोज एक सृजन करता है। इसीलिए टीचर्स के लिए आपने देखा होगा, उनको बाकी समाज के मुकाबले परेशानियां कम होती हैं। उनके चेहरे पे आपको हंसी खुशी फिर भी मिल जाएगी। वो फिर भी हंसते गाते आपको मिल जाएंगे। हालांकि डिटोरिएशन तो वहां भी हुआ है, हो रहा है। तनाव का दानव सबको लील रहा है, लेकिन इसी में से रास्ता निकालना है। दुनिया चाहे जिस ओर चले, मुझे दुनिया के बहाव में तब तक नहीं बहना है जब तक दुनिया का बहाव सही ना हो। यानी मुझे सत्य की ओर बढ़ना है। सत्य भी एक सृजन है, क्रिएटिविटी, और वहां एक अद्भुत शांति है। जब भी आप अपना कार्य कर लेंगे, या हम सब जो हम सोचते हैं हमें करना चाहिए, जब हम वो करते हैं, सकारात्मक परिणाम उसके मिलते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है। फिर हम और मैच्योर होते हैं। हम सिर्फ अपना सृजन करते हैं और मानसिक शांति मिल जाती है, परिणाम मिले या ना मिले। क्योंकि तब तक हमें श्री कृष्ण की वो बात समझ में आने लगती है कि मनुष्य का कार्य तो कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन। प्रभु की इच्छा है, परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, nobody on this earth can say if you do this you will get this and this much and at this time। this time का तो फिर भी कहा जा सकता है थोड़ा बहुत,
बाकी तो प्रभु की इच्छा है, वो क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते। तो एक स्थिति ऐसी आती है when we do our work and feel good। मानसिक शांति के लिए समाज पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। मानसिक शांति वहां नहीं होती है, वहां कोई आपको शांति नहीं देता। समाज का एक दूसरा पर्यायवाची जो मैं मानता हूं वो है ही तनाव। समाज क्यों आपकी शांति के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा? वहां तो भिन्न मतों के लोग हैं, वह अपने काम करेंगे और इंटरेस्ट कोलाइड करेंगे, एंड व्हेनेवर इंटरेस्ट कोलाइड टेंशंस इमर्ज, षड्यंत्र उत्पन्न होने लगते हैं और लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है। सोशल लाइफ क्या है? इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, एंड वी शुड ओपनली रियलाइज इट, एडमिट इट, एक्सेप्ट इट। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, और दो लोगों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। किसान हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, एक को धूप चाहिए, एक को पानी चाहिए। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जहां भी होता है वहां टेंशंस होती है, वहां खींचातानी होती है। ये नेचुरल है। ये श्री राम के समय में भी था, श्री कृष्ण के समय में भी था, ये राजा दक्ष प्रजापति के समय में भी था, ये राजा पृथु के समय में भी था, ये हर्षवर्धन के समय भी था, विक्रमादित्य के समय भी था, भगवान बुद्ध के समय में भी था। ये तो मनुष्य की मजबूरी है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होगा तो परेशानी होगी। सुबह किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, यानी पति पत्नी, उनका ही इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो डिफिकल्टी होगी ही होगी। कोई एक चीखेगा। यह है समाज। तो समाज कभी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देता। आपको पीस ऑफ माइंड कौन देता है? पीस ऑफ माइंड आपको देता है आपका अपना चिंतन, आपकी अपनी क्रिया, एक्टिविटी, वर्क। गुरु, कुछ अच्छे लोग और प्रभु ध्यान। आप किसी भी धर्म पंथ के हों, प्रभु का ध्यान, ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है। इसके इतर आपको पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। दूसरों के दुख से कुछ लोग धनोपार्जन और प्रतिष्ठाोपार्जन करते हैं। ये समाज की मजबूरी है। जब तक कोई बीमार नहीं होगा, चिकित्सक का पेट नहीं भरेगा। ये मजबूरी है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। विद्यार्थी होंगे तो शिक्षक होंगे, लेकिन शिक्षक का इंटरेस्ट अलग है, विद्यार्थी का इंटरेस्ट अलग है। शिक्षक कहेगा आपका असाइनमेंट अच्छा है, मैं मार्क्स दूंगा। विद्यार्थी कहेगा असाइनमेंट मैंने नहीं भी लिखा हो तब भी मार्क्स दो, और इतने अच्छे दो। इंटरेस्ट कोल्यूट करते हैं। तो जब इंटरेस्ट कोलेट करते हैं तो डेफिनेटली टेंशंस इमर्ज होती हैं, एंड देन यू फाइंड पीस ऑफ माइंड ओनली विद हिम। क्रिएटिविटी की बात करूं इससे पहले पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति के कुछ चरित्र की बात करना चाहता हूं। पहली बात, देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड except for the God and truth. And God is truth, truth is God. इसके इतर दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं। पीस ऑफ माइंड परमानेंट नहीं है। इट इज नॉट समथिंग लाइक which is kept in, which you keep in your pocket. पीस ऑफ माइंड अभी है, अगले क्षण नहीं है। अभी मैं महसूस कर रहा हूं आपसे बात करते हुए कितना मुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपसे बात करके यहां से डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी पड़ जाए जो मुझे तनाव दे दे, वो अपशब्दों का प्रयोग कर दे,
या कुछ भी हो सकता है, या किसी की परिस्थिति ऐसी हो सकता है कि कहीं कोई मेरा प्रियजन बीमार हो जाए। Peace of mind is a temporary state of mind. It's not permanent. Permanent क्या है? If you want peace from the core of your heart, pragmatically, अगर आप व्यवहारिक रूप से शांति की खोज कर रहे हैं, शांति को समझ रहे हैं और उसे अपने जीवन में उतारें, तब पीस ऑफ माइंड मिलेगी। समाज पीस ऑफ माइंड कभी नहीं देगा। पीस ऑफ माइंड अंदर है। अब पीस ऑफ माइंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू रियलाइज दैट यू आर हैप्पी, यू रियलाइज दैट you accept this truth that nobody from outside can make me happy. I have to be happy. Adjustment with the situations. You cannot command the situations. कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, पूरी दुनिया का बादशाह भी सारी सिचुएशन को कमांड नहीं कर सकता। तो फील कि मैं सिचुएशन से एडजस्ट कर रहा हूं और ये होता ही है, चलो छोड़ो, आओ कुछ चाय बनाते हैं। चाय बनाना क्रिएटिविटी है। फॉर मी इट इज अ ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर इफ आई प्रिपेयर टी फॉर माईसेल्फ और फॉर समबडी हु इज गेस्ट। मुझे अच्छा लगता है। लोग बनाने नहीं देते आउट ऑफ रिगार्ड, वो एक अलग बात है, बट आई फील गुड। और इसलिए जब सब चले जाते हैं, चुपके से मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ। चाय बना के टहलता हूँ, अच्छा सा कोई भजन सुनता हूँ, कोई गीत भी सुनता हूँ। बहुत सारे फिल्मी गीत ऐसे हैं जो कोर स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं, मैं सुनता हूँ उसमें। बहुत सारी गजल्स ऐसी हैं जो जिंदगी की हकीकतों को बयान करती हैं, मैं सुनता हूँ, खुशी मिलती है। Peace of mind is that. What you feel when you feel yourself happy. और हम हैप्पी कब होते हैं? जब मैं जो चाहता हूं वो मैं कर पाया, अच्छे से कर पाया। अब जो होगा देखा जाएगा। ये एडजस्टमेंट विद सर्कमस्टेंसेस है। Each one of us should be ready for the adjustments. You cannot control the life. ये मैंने सीखा है। अब कोई कंट्रोल कर सकता हो एक अलग बात है, लेकिन जो मैंने सीखा है मैं वही शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैं अनुभव शेयर कर रहा हूं। ध्यान से कोई पीस ऑफ माइंड थोड़ी आता है। स्टार्टलिंग फैक्ट। ध्यान में क्या होता है? एक बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, ये दोनों अलग हैं। यहां मैंने क्लासरूम का उदाहरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब सेम एनालॉजी आई एम गिविंग फॉर द ब्रेन, द माइंड। हमारे जो माइंड के अंदर जो थॉट प्रोसेस है, जिसके बारे में अभी बताऊंगा, मैं बात करूंगा, जो मैं कुछ सीख पाया हूं कि थॉट प्रोसेस क्या होता है, थॉट कहां से आता है, ये मैं बात करूंगा अभी। थॉट होता क्या है ये भी बात करूंगा। मन कहाँ है, मन क्या होता है, ये सब बात मैं भी करूंगा। बस थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि उसको फिर जब मैं कोरिलेट करूं पीस ऑफ माइंड से, तो वो बात एकदम ऑब्वियस हो जाए। तो जब बाहर की बातें मेरे मस्तिष्क में प्रवेश ही ना कर सकें, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम में केवल ईश्वर हो, तब पीस ऑफ माइंड आएगा। अदरवाइज ध्यान से भी पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा। मेनी पीपल फील दैट inhalation, exhalation, and keeping the eyes closed is meditation. No, it is not. Many people say that concentration is meditation. No,
concentration is a unit of meditation. It is not meditation. It is a prerequisite of meditation. It is not meditation. जब आप बाहर के विचारों को बाहर छोड़कर भीतर में ईश्वर के विचार को परमिएट करने के काबिल हो जाते हैं, तब जाकर ध्यान शुरू होता है. और ये करना आसान नहीं मानने वाला, वेरी डिफिकल्ट. 40,000 thoughts, small or big, they unwrap us, they unwrap our mind daily. Imagine, हम सो जाते हैं, ब्रेन नहीं, शरीर सो जाता है, मस्तिष्क नहीं. और कभी कभी तो शरीर डेड हो जाता है, ब्रेन नहीं. ब्रेन एक बड़ी अनसुलझी पहेली है, बड़ी अनसुलझी पहेली. तो जब हम सारे थॉट्स एक फोकस कर देते हैं चीज पर, ईश्वर पर, तब ध्यान शुरू होता है. देखिए, हालांकि मैं विषय से थोड़ा सा विचलित हो रहा हूं, लेकिन वो मुझे जरूरी लगता है, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं. गीता में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? गीता में श्री कृष्ण यही पेडागॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका वर्णन मैंने अभी आपसे किया. जो पहला विषय है गीता का, जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, उसमें अर्जुन की समस्या को दिखाया गया है कि मतलब अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है. उनका बहकना दिखाया गया है, जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण परम तप कहते हैं. अर्जुन बहुत बड़ा लॉरिएट है, बहुत बड़े वीर हैं, बहुत सारी कलाओं के स्वामी. स्वामी का मतलब पति नहीं होता है, स्वामी का मतलब मास्टर होता है. दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए सन्यासियों को या गुरु को स्वामी बोला जाता है, पति नहीं हो जाता हो. कुछ शब्दों का कभी कभी हम लोग बिना जाने प्रयोग कर देते हैं. गांडीवम स्त्रंसते हस्ततत्व चैव परिदहते न चा शकोम्य वस्थातुत्वम ब्रह्मतीत विचा में मनः. अर्थ है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा में बहुत जलन हो रही है. मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं. ये कब होता है? जब हमारे विचार तारतम्यता छोड़ देते हैं, जब हमारे विचार टूट जाते हैं. when our thoughts are broken, when objective of life or goal of life is broken, the very contact between the society is a set of people, not just an individual. Individual does have an existence, but individual is not complete. Individual completes a society with other people. This is the reason that all the things cannot be in one hand. Otherwise, it will be a gross injustice. One may be good, like you, but if somebody is not good, that he would disrupt God's own creation, that is the society. And God for long does not bear any kind of disruption or disturbance. That is why human beings are penalized also. So the epitome of what you have asked and what I have said is that all the things cannot be in one's hand. The reason being, he has to interact with the society which is set of individuals,
and interests will collide if all the things go in one's hands. So the man always has tendency to possess everything, but he cannot possess because God doesn't want this for the sake of justice. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Ashish sir, can you connect? यस सर जी। अब मुझे आप बीच में लगातार मुझे ऑडियो नहीं आ पा रहा था। जी भाई चाहता साहब, हूं जी सर। जी 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 एक्चुअली we were missing you. Reason is you had specially requested कि मैं पवन भाई साहब के साथ रहना चाहता हूँ, and somehow आज कुछ ऐसा रहा कि आप वहाँ पे जमुरी मैदान में रहे होंगे. I request you to kindly give your presidential address. जी थैंक यू सो मच सर। आदरणीय माननीय कुलपति जी, आदरणीय पवन सिन्हा जी, और सभी जो सभी शिक्षक गण इसमें जुड़े हुए हैं, सभी एचओडीज, सभी टीचर्स। अभी हमने आदरणीय पवन सिन्हा जी को सुना सर, बहुत अच्छा उनका प्रेरक एक तरह से पूरा स्पीच था। और मैं सुन रहा था कि जिन्होंने हर क्षेत्र को जीवन में क्रिएटिविटी को बहुत उस तरीके से जोड़ा है। मैं आदरणीय पवन सिन्हा जी ने जो कहा, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि मैं उनसे लगभग करीब 1.5 दशक से उनसे पुराना मेरा संबंध है, संपर्क है। वो एक तरीके से मेरे बड़े भाई हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, फिलोसोफर हैं। और जिस तरह की जो जीवन में कैसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बनाए रखना, अपने अंदर क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता है वो समाप्त ना हो, ये उनसे हमेशा से प्रेरणा मिलती रही है। मैं उनकी बातों को नहीं दोहराऊंगा, मैं चूंकि ये दुस्साहस भी नहीं कर सकता कि जो पवन जी ने कहा है, क्योंकि पवन जी वैसे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो एक तरीके से समाज सेवा से सतत जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से वो एक न्यास चलाते हैं, वहां पर जिस समाज का को दिशा देने का काम होता है, वो चाहे तो बहुत अच्छे ज्योतिष हैं वो, और उसको अगर पूर्ण रूप से पेशा अपनाए तो मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है उनको। हजारों लाखों रुपए वो हजारों रुपए प्रतिदिन और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक पावन चिंतन धारा के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। और मैंने उनके काम को बहुत नजदीक से देखा है कि कैसे कुछ रोगियों के लिए वो काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली शहर को छोड़कर एक गांव में अपना निवास बनाया है। ये बहुत मतलब प्रेरक है कि उनके लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, और उनकी प्रेरणा से कई लोग काम करते हैं। तो जैसे उन्होंने अपनी बात की मैं कि वो सृजनात्मकता पर जोर दे रहे, मुझे लगता है कि जो आज का विषय है उसको भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्रिएटिविटी, ये मुझे रचनात्मकता की अगर हम बात करें तो आज से 10-20 साल पहले अगर हम क्वालिटीज में अगर हम देखते थे तो सर हमें ध्यान में आता है कि कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं होती थी क्रिएटिविटी की। और आप 20 साल पहले जो प्राइवेट कंपनीज हायर करती थी, लोगों के चयन का जो पैमाना होता था, उसमें कहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं होती थी। और मुझे लगता है कि एक जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, मैं उसको यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है दुनिया के कई लीडिंग कंपनीज की, ऑलमोस्ट जो है वो 371 ऐसी लीडिंग कंपनी जिसमें करीब 15 मिलियन एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स हैं, उनके बीच एक सर्वे करवाया था। वो 2 बार सर्वे हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इसकी रिपोर्ट में उसका जिक्र है कि सन 2015 की रिपोर्ट में और 2020 में। तो उसमें ये ध्यान में आया है कि 2015 में जो टॉप 10 क्वालिटीज वो अपने लोगों में चाहती थी, उसमें जो क्रिएटिविटी है वो मैं उसको कोट कर देखा हूँ, उसको कर रहा हूँ कि उसमें वो जो लेख आता है, क्षमा कीजिएगा 1 मिनट उसको मैं, तो उसमें जो क्रिएटिविटी है वो 10वें नंबर पर थी। यानी टॉप 10 क्वालिटीज में 2015 में जो चीज 10वें नंबर पर थी, 2020 में उस सर्वे में वो जो आया है, जो उस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, वो क्रिएटिविटी जो चीज है वह टॉप 3 में है। यानी अब जो है क्रिएटिविटी को तरजीह जो है वो देना ज्यादा प्रारंभ हुई है। यानी हम 5 साल में एक पूरा जिसको कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 20 साल पहले कहीं नहीं थी, टॉप 10 में नहीं थी, 2015 में टॉप 10 में वो क्वालिटी आई,
और 2020 में वो टॉप 3 में वो क्वालिटी आई। यानी और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो नेटफ्लिक्स का नाम हम सब जानते हैं, भारत में मोजर बियर कंपनी है, उसका भी लगभग कुछ लोग नाम जानते हैं, कम लोग जानते हैं अगर कंपैरिजन करें तो। नेटफ्लिक्स और मोजर बियर, मैं जब इसको समझने की कोशिश कर रहा था अभी कुछ देर पहले बैठे हुए, बहुत लंबा समय नहीं किया, तो मैं देख रहा था कि दोनों जो कंपनीज हैं वो एक ही समय स्थापित हुई, लेकिन आज नेटफ्लिक्स कहाँ है और मोजर बियर कहाँ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोजर बियर का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कंपेयर करें तो चूंकि नेटफ्लिक्स ने क्रिएटिविटी को तरजीह दी इसलिए आज बहुत ऊपरी स्थान पर है। तो ये जो एक बदलाव दिखाई दे रहा है वो ये मुझे लगता है कि इस विषय पे कि अब जो है हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम जीवन में कहीं भी रहें, अगर हम देखते हैं हर क्षेत्र में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर बहुत जोर होने लगा है कि कुछ नया सोचिए। हम चाहे टीचिंग के प्रोफेशन में हैं तो वहां भी देखिए कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की बात कीजिए। आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप क्या कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं क्या अपने काम में? ये जीवन के हर क्षेत्र में है। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है कि ये अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए आप एक भेड़चाल वाली चाल में नहीं चल सकते। आपको कुछ नया करना है। नया यानी आपके अंदर कुछ नया करने, कुछ रचनात्मक सृजन आप अगर करते हैं तो आप, मुझे लगता है कि सफल होंगे। और माननीय पवन सिन्हा जी का मार्गदर्शन हमें मिला, माननीय कुलपति जी को हमने सुना सत्र की शुरुआत में, मुझे उनका हमको एक प्रेरक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि इस सत्र का मैं ज्यादा लंबा नहीं, तो बहुत लंबा पहले ही काफी बड़ा सेशन हो चुका है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो आज का हमको सबको लाभ मिला है। मैं माननीय पवन सिन्हा जी का आभारी हूँ, आदरणीय प्रोफेसर सीपी अग्रवाल साहब का, कि उन्होंने मौका दिया इस सेशन में आपके साथ अपने विचार साझा करने के लिए, मुझे उपस्थित रहने के लिए, पवन जी को सुनने के लिए, आप सब लोगों को क्वेश्चन सुनने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Manish Maheshwari, you would like to say something? There is one question in the chat box. Could you please clear the concept of functional spirituality? I would request thereafter Dr. Maheshwari to take up. Yes. The spirituality which is pragmatic, practical, the spirituality which can be practiced, it is not just the words, शब्दविद ना होकर अध्यात्म कर्मविद हो, यानी वो कर्म में उतारा जा सके, उसको हम फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। एक ऐसा अध्यात्म जो है वो है जो हमारे कर्म में परिलक्षित होता है। यदि केवल बातों में परिलक्षित होता है तो वह अध्यात्म नहीं है, वो विद्वता है। इसीलिए हम फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि हम जो सोचते हैं या जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, विद्वजनों की बातें, ऋषियों की बातें सुनते हैं, वो बातें अगर प्रैक्टिस में आ सकती हैं तो वो फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी है। और प्रैक्टिस में नहीं आ सकती, जैसे कोई कहे कि नदी नाचते नाचते स्त्री बन गई, स्त्री नाचते नाचते नदी बन गई, ये प्रैक्टिस में नहीं आ सकती। तो ये फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी नहीं, बट ह्यूमनिज्म फंक्शनल है। ह्यूमनिज्म हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, वो फंक्शन में आती है। तो ये फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी है। क्रोध का नाश हो, काम क्रोध लोभ अहंकार इनका नाश हो, ये फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि जब तक ये नष्ट नहीं होंगे हम चित्त की वृत्ति यानी चित्त के यानी सोच के भंवर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी शांति आराम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी है। श्री कृष्ण जिस तरीके से श्री अर्जुन को समझाते समझाते धर्म की स्थापना के लिए उन्मुख कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी। सभी को नमस्कार। आज प्रथम दिन का ये अंतिम सत्र था और हम सबको पूरे दिन में इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली कि समय का हमें पता ही नहीं लगा। तो मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे आदरणीय वक्ता गुरु पवन जी सिन्हा को उनके बहुमूल्य विचारों के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया और उदाहरण सहित
हमको जीवन के कई सूत्र बताए। निश्चित रूप से हम सब आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आभारी हैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर केजी सुरेश सर का, जो उद्घाटन सत्र में अन्य कार्यक्रम के अचानक आ जाने के कारण जल्दी चले गए थे, लेकिन इस सत्र में हम सबके बीच एक श्रोता के रूप में उपस्थित हो। सर हमेशा कहते हैं कि हमको हर समय कुछ सीखने को मिलता है और शिक्षकों और छात्रों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और विश्वविद्यालय में भी सर हमको कुछ नया करने की प्रेरणा हम सबको देते रहते हैं और इसलिए ही इस इतने अच्छे कार्यक्रम को हम मूर्त रूप दे पाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी श्री आशीष जोशी जी का, जिनने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में इस सत्र की अध्यक्ष उद्बोधन को स्वीकार किया और हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने बोला, आज प्रथम दिन का अंतिम सत्र था और हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी श्रोता हैं हमारे साथ पूरे दिन से साथ में ही। उन सब ने धैर्य पूर्वक हमारे सभी वक्ताओं को सुना, अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से इसमें भाग लिया। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो आपको बहुत सारे और अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने को मिलेगा और अपनी जिज्ञासाओं को का समाधान प्राप्त करने का भी समय मिलेगा। इस पूरे एफडीपी की संरचना के लिए मैं आभारी हूं प्रोफेसर सीपी अग्रवाल सर का कि इतने सुंदर ढंग से इसका आयोजन आपने इसका प्रारूप बनाया हुआ है। इस सत्र की को संचालन के लिए मैं श्री राहुल खड़िया जी का आभारी हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दिन भर का कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं आभारी हूं टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।